So hello everyone. We all know pregnancy has been divided into three trimester: first 3 months, second 3 months, and last 3 months. And trimester wise, there are a lot of complications that can happen to a pregnant lady. And for MBBS, it is very important that we remember all the common entities that can be encountered during pregnancy. So we will start from, as I have started, A to Z series of obs and gynae. So A stands for abortion, and we'll be learning all types of abortion, including medical termination of pregnancy and the amendments and in its acts. So in first trimester complications, there are mainly three things that we look for. First is abortion, second is ectopic pregnancy, and third is molar pregnancy. So I'll be talking about abortion one, and I'll be sharing one screen that's a small, cute presentation, and that will help us to learn more about uh, early pregnancy complication. So pardon my spelling mistake happens जब आप ज़्यादा engaged होते हैं. So I'll start with narrating this story of let us assume one patient नीलू. उसकी कहानी लेकर चलते हैं. शादी हुई और 6 months हो गए और उसने कंसीव किया स्पॉन्टेनियसली. सो स्पॉन्टेनियस कॉन्सेप्शन का मतलब है जहां पर कोई एड्स नहीं यूज किए गए उसकी प्रेगनेंसी को हेल्प करने के लिए. She tested for her pregnancy. It was coming out to be positive. So now the students will tell me what is the hormone that is tested in pregnancy testing kit, which is commercially available. She did not get any ultrasound because, again, it is time to talk about myth also that people do believe that getting too many ultrasounds and too early in pregnancy may lead to complications in pregnancy. Clinical features of the pregnancy were positive, and this is again a common question which is asked during Viva, that what are the common clinical features that makes us to lead us to make a diagnosis of pregnancy. So I'll answer here. It is nausea, vomiting, morning sickness. And there are certain physical manifestations also, like breast changes, skin changes, and so many named signs like Chadwick signs, Jacquemer signs, Keck sign, then Palmer sign, Higgard sign, that we will discuss in subsequent classes. So she had nausea, vomiting, and weakness, and everyone was obviously happy that she got pregnant within 6 months of her marriage. But suddenly something drastic happened. At 2.5 months of her gestation, patient had sudden bleeding and pain in lower abdomen. She took some medications on her own, but that pain and bleeding continued. So mother-in-law took her to a doctor. So she visited the doctor who examined her and asked certain questions. So clinical diagnosis of incomplete abortion by that doctor was made. And doctor advised completing this abortion because it was incomplete. So have a look. Here it is incomplete. So doctor advised completing this abortion, otherwise bleeding can be continuous, profuse, and patient may develop other complications like shock, which is hypovolemic hemorrhaging. So what is abortion? It is basically expulsion, whether spontaneous or induced, of products of conception in a gravid uterus before 20 weeks or 500 grams or where crown rump length is less than 10 inches. This was given by WHO in 2018. अभी इसको अमेंड कर दिया और 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी अगर खुद से निकल जाती है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस या फिर किसी रीजन से डॉक्टर उसको टर्मिनेट करता है तो 24 वीक्स अब एक लीगल टाइम लिमिट है जहां तक अबॉर्शन किया जा सकता है और यही इसका अमेंडमेंट है and we will discuss this amendment completely in the further segment. So to you all, my question is, in this case, ये abortion spontaneous था या induced था और इसका period of gestation क्या था? So to answer it, yes, it is spontaneous क्योंकि किसी ने induce तो किया नहीं और period of gestation क्योंकि हमें अभी इसकी last menstrual period की date नहीं पता थी तो इसलिए 2.5 months एमेनोरिया पे इसको spontaneous abortion हुआ. Now, what can cause abortion? That is very important for your general knowledge also. See, pregnancy is a very normal and physiological process.
एंड नेचर का इसमें बहुत बड़ा रोल है टू मेंटेन इट, टू कंटिन्यू इट, हाउ इट कल्मिनेट्स। सो अगर नेचर को कभी भी लगता है कि ये प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होने वाली है, या तो उसमें कोई डिफेक्ट होने वाला है, या फिर मदर की कंडीशन इस प्रेगनेंसी के चलते बहुत खराब होने वाली है, तो नेचर का अपना सिलेक्शन है एंड नेचर ट्राइज टू एलिमिनेट सच प्रेगनेंसी। तो जैसे क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज हैं, एक बेबी या फीटस ऐसा बन रहा है जिसमें क्रोमोसोमल या जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज होनी है, वो कंपैटिबल ही नहीं होगा उस यूट्रस पे चिपकने के लिए और उस प्रेगनेंसी को आगे ले जाने के लिए। सो इन दैट केस, एंड इन फैक्ट दिस द कॉमनेस्ट कॉज फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। सेकेंड इज एनाटॉमिकल फैक्टर्स। एनाटॉमिकल फैक्टर मतलब एनाटॉमी में कोई गड़बड़ है। सो एनाटॉमी किसकी गड़बड़ हो सकती है? यूट्रस की, बिकॉज दैट इज द होम टू प्रेगनेंसी, और अगर घर ही ठीक नहीं है तो प्रेगनेंसी भी ठीक तरह से नहीं चल पाती। थर्ड इज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। बेसिकली जब यूट्रस का माउथ वीक हो जाता है, बिकॉज दैट्स द थिंग दैट कंटेन्स और होल्ड्स द प्रेगनेंसी इनसाइड द यूट्रस, और अगर वो वीक है तो प्रेगनेंसी उसको यूट्रस के अंदर नहीं टिक पाती है, इट गेट्स एक्सपेल्ड आउट। फोर्थ इज इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन में यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन यानी कि टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, सीएमवी और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ये इन्फेक्शंस ऐसे हैं जिसकी वजह से अबॉर्शंस हो सकते हैं। Certain types of coagulation disorders are also notorious to cause or bring about abortions. Endocrinological dysfunction, especially thyroid में कोई प्रॉब्लम है, प्रोलैक्टिन का कोई डिसऑर्डर है, डायबिटीज मिलाइटस है, या कुछ भी एक्सेसिव या अंडर प्ले ऑफ हार्मोन्स कैन लीड टू नॉन सपोर्टेड प्रेगनेंसी। इम्यूनोलॉजिकल, जहां पर मदर की इम्यूनिटी और फीटस की इम्यूनिटी में फाइट होती है। सो आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी इज अ कंडीशन इन विच मदर इज हैविंग लो इम्यूनिटी एंड इट इज प्रोन टू वेरी मेनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। सो ये इसीलिए होता है क्योंकि मदर को अपनी इम्यूनिटी थोड़ी टोन डाउन और अंडर प्ले करनी पड़ती है, वरना वो फीटस को एक फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करती है और फीटस को एक्सपेल आउट कराने की कोशिश करती है। तो जिस केसेस में भी मदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई एज कंपेयर टू फीटस की जो इन्वेडिंग प्रोसीजर है या प्रोसेस है, उस केस में अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। देन देर आर सर्टेन कॉजेज विच आर अननोन। सब कुछ ठीक है, देर आर नो क्रोमोसोमल एनाटमिक सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, कोई डिसऑर्डर नहीं है, थायराइड प्रोलैक्टिन डायबिटीज कुछ नहीं है, तब भी अबॉर्शन हो सकता है। और उसके रीजंस और उसकी इटियोलॉजी अभी हमें बहुत अच्छी तरह से नहीं पता। सो लेट अस टॉक ऑफ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज। कॉमनेस्ट कौन सी है? ये नीट पीजी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट एमबीबीएस जब हम गायनी पढ़ाना शुरू करते हैं टू योर फाइनल ईयर, वी कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन। इसको रट लेना कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज का जो सबसे कॉमन एब्नॉर्मेलिटी है वो है एन्यूप्लॉइड, यानी कि क्रोमोसोम में नंबर का डिफेक्ट होना। 23 है ऑटोसोम, 24 हो गया, 24 है 25 हो गया, 25 है 26 हो गया। सो कोई भी ऑटोसोम्स में प्रॉब्लम होना, न्यूमेरिकल डिफेक्ट होना, एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। और एन्यूप्लॉइडी में कॉमनेस्ट कौन सा एन्यूप्लॉइड है? वो ट्राइसोमी 21, जिसको कि हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। उसकी वजह से अगर ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है फीटस में, सो मेजॉरिटी ऑफ द फीटस विल ड्रॉप डाउन। बट यस, ये भी ट्रू है कि ट्राइसोमी 21 बढ़ जाते हैं, they do come out at term. We have seen so many Downs babies, but yes, this is nature's way of selecting these babies not to grow and not to come. दूसरा प्रॉब्लम है यूट्राइन मैलफॉर्मेशन। मैंने जो बताया था एनाटॉमिकल फैक्टर, यानी कि घर ऑफ प्रेगनेंसी या होम और रूम ऑफ प्रेगनेंसी। सो एक नॉर्मल यूट्रस की शेप ऐसी होती है जहां पर प्रेगनेंसी फंडस पे और इधर इम्प्लांट होती है, ग्रो करती है, मस्त डिलीवरी हो जाती है। लेकिन if you have a look at how many types of abnormalities uterus can develop, ये छोटे छोटे हॉर्न्स बन गए हैं। यहाँ पे आर्कुएट इम्प्लांटेशन की जगह कम हो जाती है और हो भी जाती है, तो यहाँ पे अबॉर्शन, यहाँ पे इम्प्लांटेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। ये एक छोटा सा हॉर्न बन गया, इधर बाइकॉर्नेट यूट्रस हो गया, यहाँ पे प्लम्बा से सेप्टम आ गया। सो इन दैट केस प्रेगनेंसी अगर आके लग भी जाती है, इम्प्लांटेशन बहुत बढ़िया नहीं होता। और आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन, यानी कि प्लेसेंटा का इन्वेजन मायोमेट्रियम में, वो यहाँ पे डिफेक्टिव हो जाता है और प्रेगनेंसी अबॉर्शन में कल्मिनेट कर जाती है। थर्ड थिंग दैट आई टॉक्ड अबाउट वाज ए सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस।
जब cervix tight enough नहीं है to hold the fetus, it becomes very soft and gives way. And this was earlier known as incompetent cervix. Nowadays, it is called as cervical insufficiency. So if you have a look, a tightly closed cervix will nicely contain this fetus, but when this cervix is loose, so as the pregnancy grows, this will give way and abortion will happen. So my question here is, बहुत ध्यान से सुनना कि कभी भी कोई क्लिनिकल केस दिया जाएगा जिसमें ट्रायड होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉम्प्लिकेशन का, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉम्प्लिकेशन का ट्रायड होता है एमेनोरिया, right? I'll write. So it is, I don't think it is visible. So amenorrhea, ये तो होगा ही ऑब्वियसली क्योंकि प्रेगनेंसी है. इसके साथ होगा पेन और इसके साथ होगा ब्लीडिंग. अगर कोई भी पेशेंट एमेनोरिया, लोअर एब्डोमेन पेन और ब्लीडिंग के साथ आती है, हमारे पास 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है जो मैंने पहले कहा था. वो है अबॉर्शन, मोलर प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो आपने नोटिस किया है कि इस ट्रायड में एमेनोरिया, पेन, ब्लीडिंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में पेन विल बी क्लासिकली एब्सेंट. स्टिल अबॉर्शन विल हैपन क्योंकि यहाँ पर पेन होने की जरूरत ही नहीं है, इसको सिर्फ लूज होना है और प्रेगनेंसी निकल जाएगी. So in cases of cervical insufficiency, the classical clinical picture that will be given to you, especially during your NEET PG clinical question, कि एक पेशेंट आती है, उसको एमेनोरिया है 2 months का, 2.5 months का, और उसको पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है एंड शी हैज एक्सपेल्ड द फीटस. So what could be the commonest cause or what could be the probable cause for this condition? So your answer should be cervical incompetence or cervical insufficiency. राइट. सो आई थिंक हम लोगों ने ये बात अच्छी तरह से यहाँ से समझ लिए. इन केस कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क. सो नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन. इन्फेक्शन में क्यों होता है अबॉर्शन? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है जैसे कि स्टेफाइलोकोकस है, इकोलाई है, ट्यूबरकुलोसिस है, या वायरल इन्फेक्शन है जैसे टॉर्च ग्रुप है, HIV है, पैरासिटोलॉजिकल है, मलेरिया, इसमें तो पायरेक्सिया होता है. पायरेक्सिया मतलब एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर. एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर है तो उसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी एंड इनफैक्ट हमारी पूरी बॉडी की होम्योस्टेसिस नीड वन पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पे हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस वेल और नॉर्मल तरीके से काम करते हैं. जब भी टेम्परेचर बढ़ता है सेल्यूलर डिस्फंक्शन होना स्टार्ट हो जाता है. और ये पायरेक्सिया क्यों हुआ? क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो है बॉडी में वो एलिवेट हो गए. टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो इन बैक्टीरिया या वायरस ने बॉडी में दिया वो बढ़ गए. तो वो जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जैसे इंटरल्यूकिन्स हैं, साइटोकाइंस हैं, कभी कभार कुछ इन्फेक्शंस और इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हेल्पर सेल्स भी रिक्रूट हो जाते हैं, नेचुरल किलर सेल्स रिक्रूट हो जाते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो जितना भी बॉडी में स्पेशली फॉरेन बॉडी जो कंसिडर करते हैं उसको किल करने के लिए निकल पड़ते हैं. तो जैसे आई हैव ऑलरेडी सेड कि मदर की बॉडी फीटस को एक फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करती है. तो जहां पर भी ये इंफ्लेमेटरी मार्कर्स को लगेगा कि कोई फॉरेन बॉडी है, दे ट्राई टू एलिमिनेट और किल दैट पर्टिकुलर सेल. सो इस वजह से चांसेस ऑफ अबॉर्शन बढ़ जाते हैं जब बॉडी का टेम्परेचर एलिवेटेड होता है और इन्फेक्शन होता है, क्योंकि बैक्टीरियमिया, टॉक्सीमिया या वायरेमिया की वजह से इंफ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं. So in that case, you will get a history of fever, especially in viral groups, history of fever with rashes will be there. Certain coagulation dysfunctions, like in some coagulatory disorders, blood is failing to coagulate. उससे क्या होता है, there is bleeding into fetal blood vessels and वहां पर जो blood vessels हैं वो अपने आप को sustain नहीं कर पाएंगी, penetrate नहीं कर पाएंगी, and this can lead to abortion. So I'm not able to do this. Okay. Right? फिर इम्यूनोलॉजिकल डिस्फंक्शन आता है. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट CD8 सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, CDK8+ सेल्स. ये डिस्ट्रॉय करते हैं फीटस की, क्योंकि वो मदर की बॉडी या मदर की ये जो फाइटर सेल्स हैं, दे कंसिडर फीटस एज फॉरेन बॉडी. अब अगर मदर की इम्यूनिटी कम है, उसने अपने इम्यूनिटी को कम किया तो फीटस आराम से डेवलप करेगा, मगर अगर मदर की इम्यूनिटी बढ़ गई है तो वो फीटस को रिजेक्ट करेगा एंड इट विल टर्न इनटू द इवेंट ऑफ अबॉर्शन.
एंडोक्राइनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है ना, प्रेगनेंसी वगैरह सब क्या है, ये गेम ऑफ हॉर्मोन्स का ही तो है। हॉर्मोन्स ठीक है तो प्रेगनेंसी ठीक है, हार्मोन गड़बड़ है तो प्रेगनेंसी भी गड़बड़ हो सकती है। इनफैक्ट इंटायर रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग इज डिपेंडेंट ऑन हॉर्मोन्स। सो पहला एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी। इसको हम ल्यूटियल फेज इनसफिशिएंसी या ल्यूटियल फेज डिफेक्ट बोलते हैं। ल्यूटियल फेज में ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू करता है, और अगर प्रेगनेंसी आ जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, so that progesterone supports the pregnancy. कभी कभार प्रोजेस्टेरॉन एडिक्वेट क्वांटिटीज में नहीं बनता है, या फिर जो प्रेगनेंसी होती है, बॉडी ऑफ द मदर होती है, वो सेंसिटाइज होती है प्रेगनेंसी को, तो उसे कंसिडर नहीं करती, एंड प्रेगनेंसी रिमेन्स अनसपोर्टेड, तब अबॉर्शन हो सकता है। थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म हो रही है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो रही है, बिकॉज टीएसएच के जो सब यूनिट है वो एफएसएच को मिमिक करती है। सो यहाँ पर एक दूसरे से मतलब वो जो गलत फहमी हो जाती है ना, कि जैसे जुड़वा में होती है कि ये भी एक सा है, ये भी एक सा है, कौन असली है कौन नकली है, काइंड ऑफ स्टफ इज हैपनिंग। सो थायराइड डिसऑर्डर्स और डेफिशिएंसीज में endocrinological abnormality का, in fact this is very common cause for landing a patient into abortion. Other disorders like diabetes का अपना immunological cause तो है ही जिसमें abortion होता है, मगर डायबिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से अबॉर्शंस होते हैं। वो है कि डायबिटीज अगर ऑर्गेनोजेनेसिस के पीरियड में होती है, किसी को पहले से डायबिटीज है, ओवर डायबिटीज है, या नई डायबिटीज है अभी प्रेगनेंसी में शुरू हुई है और अर्ली प्रेगनेंसी में स्टार्ट हो गई है, तो जब ऑर्गन्स बन रहे होते हैं और हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा होता है बॉडी में, बहुत प्रोफाउंड ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है और न्यूरल क्रेस्ट माइग्रेशन नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं। सो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन टू यू फॉर योर होमवर्क मे बी, कि व्हाट आर द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, द एंटायर स्पेक्ट्रम, उसके नाम आपको पता होने चाहिए। और जब भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं तो वो प्रेगनेंसी के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाए। सो डायबिटीज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसफंक्शन, बट ऑल्सो it is a very important cause of congenital abnormalities, especially neural tube defects. इसकी वजह से भी इसमें अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड फाइनली आई ऑलरेडी सेड अननोन है, और उसमें मे बी डिफेक्टिव एंडोमेट्रियम वो बढ़िया नहीं बना है, उसका सेल्यूलर डिसफंक्शन है, प्लाज्मा सेल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, वेस्कुलैरिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो भी अबॉर्शन एंस्यू हो जाता है। सो वंस वी हैव नोन द कॉजेस ऑफ अबॉर्शन, it becomes for us to diagnose abortion, क्योंकि अबॉर्शन एक वन टाइम इवेंट नहीं है जब वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। ये समझ लीजिए कि वो स्टार्ट हुआ, फिर प्रोग्रेस हुआ, और फाइनली अबॉर्शन। सो इट इज स्टेज वाइज। सो व्हेन वी टॉक ऑफ स्टेजेस ऑफ अबॉर्शन, पहला स्टेज है थ्रेटेंड अबॉर्शन का। थ्रेटेंड मतलब प्रेगनेंसी ने डरा दिया कि ये अबॉर्शन हो सकता है। सो थ्रेटेंड अबॉर्शन इज एक्चुअली नॉट अबॉर्शन, इसमें भी अबॉर्शन हुआ नहीं होता है, सिर्फ प्रोसेस स्टार्ट हो गया होता है, जिसमें कि अगर हम कुछ एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस करें तो मे बी वो प्रेगनेंसी बच भी सकती है। अगर ये थ्रेटेंड अबॉर्शन के जो भी कॉजेज हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग या इंपॉर्टेंट थे कि हम उसको वापस नहीं ले जा पाए या हमने इंटरवीन नहीं किया, देन कम्स द स्टेज ऑफ इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल का अगर हम हिंदी में मतलब सुने तो उसका मतलब है होके रहेगा। सो ये स्टेज है जहां से प्रेगनेंसी वापस नहीं जाएगी। इनफैक्ट दिस इज द टाइप ऑफ ट्रू अबॉर्शन, ट्रू स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन विच हैज स्टार्टेड। आफ्टर दिस अब स्टार्ट हो गया और अब ये वापस नहीं जा सकता, लेकिन ये हो तो रहा था, बीच में कोई फैक्टर आ गया जिसकी वजह से पूरा जो प्रेगनेंसी निकलनी थी वो नहीं निकली, तो उस स्टेज को कहते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। और मे बी ये अभी 2 मिनट में ही निकल जाएगा पूरा और ये कंप्लीट अबॉर्शन बन जाएगा, बट इफ यू सी योर पेशेंट इन दिस कंडीशन, दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट अबॉर्शन। एंड फाइनली जब पूरा प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्टस निकल गए यूट्रस से बाहर, सर्विक्स से बाहर, देन इट इज नोन एज कंप्लीट अबॉर्शन। एक अलग तरह का अबॉर्शन होता है मिस्ड अबॉर्शन, जिसमें कि ट्रायड में जो मैंने बताया था एमेनोरिया, पेन और ब्लीडिंग होती है, इसमें सिर्फ एमेनोरिया होता है, पेन और ब्लीडिंग गायब होते हैं, इसीलिए इसकी डायग्नोसिस मिस हो जाती है।
पेशेंट को लगता है कि शी इज प्रेग्नेंट, शी इज लिविंग नॉर्मली, देयर इज नो ब्लीडिंग, she is taking maybe folic acid or some medicine that have been written by an obstetrician. But when ultrasound is done, then she might, a diagnosis of missed abortion comes, and we will discuss this subsequently. Septic abortion वो होता है जिसमें कि इन्फेक्शन हो गया प्रेग्नेंट यूट्रस में, होना था अबॉर्शन, कुछ ऐसा हुआ कि वो high level of bacteremia, viremia set in हो गया, and it has turned out into a septic entity known as septic abortion. दो तरह से होते हैं, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड. इंड्यूस्ड होते हैं जब किया जाता है, स्पॉन्टेनियस होता है जब हो जाता है. So let us talk of first stage of abortion, that is threatened abortion. Threatened मतलब हुआ नहीं है, हो सकता है. इसमें जो ट्राइड दिख रहा है आपको, एमेनोरिया, पेन और ब्लीडिंग, तीनों का. एमेनोरिया के साथ पेशेंट, जैसे मैंने स्टोरी नरेट की थी, खुश थी, प्रेग्नेंट है, हल्का सा पेन स्टार्ट होना शुरू और हल्की सी ब्लीडिंग स्टार्ट होनी शुरू, पेशेंट आपके पास पहुंचती है. तो इसमें इफ यू सी, यहाँ पर ये यूट्रस है, ये प्रेगनेंसी है, ये एम्ब्रियो या फीटस डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, और इसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स जो भी हमने पढ़े हैं, कोई ऐसा रीजन था कि ये बाहर निकलने की कोशिश करने लगा. तो जैसे ये डिटैच होने की कोशिश करेगा, यहाँ पर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि पेशेंट को दिखने लगेगी. It means the process of abortion has started, but if appropriate treatment is given, it can stop and pregnancy can continue. तो ये कैन वर्ड कभी नहीं भूलना. जरूरी नहीं है कि अगर आपने इंटरवीन किया है तो प्रेगनेंसी चली जाएगी, बल्कि पेशेंट को बता के चलना है कि देयर आर हाई चांसेस दैट दिस प्रेगनेंसी विल टर्मिनेट एज अबॉर्शन. नाउ चांसेस ऑफ प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन कॉज ऑफ अबॉर्शन. अब देखो, फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी की वजह से थ्रेटेंड अबॉर्शन हुआ और आपने प्रोजेस्टेरॉन दे दिया एक्सटर्नली, सो मे बी ये प्रेगनेंसी वापस चल जाए. लेकिन अगर ये अबॉर्शन का कॉज इन्फेक्शन है और अगर आप इन्फेक्शन नहीं ट्रीट कर पाए तो मे बी ये अबॉर्शन हो गया है. दैट इज वाई इसकी प्रोग्रेस इज डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ अबॉर्शन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें हमें मिलेगा क्या क्या? वजाइनल ब्लीडिंग होगी, स्पॉटिंग हो सकती है, माइल्ड क्रैम्प्स, बैकएक हो सकता है, बट सर्विक्स इज स्टिल क्लोज्ड, राइट? ये देखो, उसमें हल्की सी ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है, लेकिन सर्विक्स अभी भी बंद है, उसने प्रेगनेंसी को अपने अंदर एनकेज किया हुआ है. इसमें अगर आप बेड रेस्ट दे दें, थोड़ा पेशेंट को सिडेशन दे दें, ट्रानेक्सेमिक एसिड जो स्टिप्टिक एजेंट है जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है, वो दे सकते हैं. We usually say to avoid stress, avoid sexual intercourse because it may exacerbate. कोई इसका एविडेंस नहीं है, बट यस, पेशेंट को हम हमेशा बोलते हैं कि अभी कोई भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी अवॉइड करनी है. प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी कैन बी स्टार्टेड एंड अ पीरियड ऑफ वॉचफुल वेटिंग इज ऑलवेज एक्सप्लेन टू पेशेंट कि अगर चल जाती है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप हॉस्पिटल वापस आ जाना इन केस देयर इज इंक्रीज ब्लीडिंग. अब है कि ये प्रेगनेंसी जो थ्रेटेंड थी, कुछ ऐसा कॉज हुआ है कि ये अब इसका सर्विक्स खुलने लगा है. सो इफ यू सी, यहाँ पर प्रेगनेंसी वाज वेल कंटेन्ड, कार्डियक एक्टिविटी थी, पेशेंट को सिर्फ बस ब्लीडिंग होने स्टार्ट हुई, बट इनएविटेबल में ये यहाँ पे पूरा खिसकना शुरू हो गया है. यू सी लॉट ऑफ ब्लीडिंग इज हैपनिंग, इट इज डिसलॉजिंग दिस प्रेगनेंसी. या अभी यूट्रस के फंडस पे था, अब नीचे आ गया है, एंड सर्विक्स इज ऑल्सो ओपनड अप और ब्लीडिंग हो रही है खूब. सो इसमें क्या है कि आपको मिलेगा एक, तो जो प्रेगनेंसी का साइज था वो प्रेगनेंसी का साइज ही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेगनेंसी 8 वीक्स की है, तो क्योंकि अभी भी प्रोडक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी अंदर ही हैं, तो साइज ऑफ यूट्रस में भी इक्वल टू 8 वीक्स, यस, मिनिमली स्मॉल हो जाए. सेकेंड इज थ्रेटेंड मिसकैरेज में, अबॉर्शन में cervix will be closed और इसमें cervix will be open and amount of bleeding will be quite much. So inevitable abortion के features होंगे कि process of abortion has gone beyond the stage of salvageability. It means you cannot stop it. Bleeding and pain are more as compared to threatened miscarriage, but fetus is still in uterus. Cervix has opened up. Either completes by itself या कभी कभार इसमें intervention की जरूरत है. For example, if patient is bleeding profusely, she is there in front of you, you just hasten up the process of abortion. अब क्या है कि ये इसका ट्रीटमेंट क्या करना है. सो ट्रीटमेंट में
मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस प्रेगनेंसी को देखो आप पीछे नहीं लेके जा सकते, सो इस प्रेगनेंसी को आपको निकालनी, सो निकालने के लिए इधर यूज सम मेडिसिन, some drugs which increase the contraction of uterus and process of expulsion is hastened, which are oxytocics like oxytocin, misoprostol. ऑक्सीटोसिन हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली नहीं देते हैं क्योंकि रिसेप्टर्स बड़े डाउन रेगुलेटेड रहते हैं, सो इन दिस केस मिसोप्रोस्टॉल वर्क्स वंडरफुली। सर्जिकल मेथड में इधर सक्शन आउट द प्रोडक्ट्स और रिमूव देम यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर यूट्रस के अंदर प्रोडक्ट है या तो आप एक वैक्यूम सा क्रिएट करके उसको बाहर निकाल लीजिए, अगर वैक्यूम नहीं है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट अंदर यूट्रस के ले जाकर उसको पकड़ पकड़ के बाहर निकालते हैं, दैट इज नोन एज इवैक्यूएशन। So drugs which are producing uterine contraction, we have already talked about oxytocin. First trimester में 12 weeks, 13 weeks में तो काम नहीं करता है, but later on we can use. Ergot alkaloids like ergometrine, PGE2, PGF2 alpha we can use, and miscellaneous drug जो हम नहीं यूज करते अभी like quinine, alcohol, ethacridine, but I have written it क्योंकि ये कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो ऑक्सीटोसिन की तरह काम करती है। So now coming to the surgical method. So if you see, this is the uterus which was containing the pregnancy. यहाँ ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, सर्विक्स खुला हुआ है, तो हमने क्या करना है, एक स्पेकुलम लगा के सर्विक्स को विजुअलाइज करना है, सर्विक्स को टिनैकुलम या वॉल्सलम से पकड़ना है और एक सक्शन कैनुला को अंदर लगाना है और उसको रोटेट करना है। इट इज फॉर्मिंग वैक्यूम टेकिंग अप द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन फ्रॉम टू होल्स, एक ये है यहाँ से अंदर ले जाता है और एक यहाँ से अंदर ले जाता है, सो इट बिकम्स इजी। या फिर अगर हमारे पास सक्शन इवैक्यूएशन की फैसिलिटी नहीं है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सक्शन क्रिएट करने के लिए, तब हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से निकालते हैं, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट। सो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो आप लोग मुझे बताएंगे जो इवैक्यूएट करने के लिए यूज करते हैं। सो इधर बाय यूजिंग कार्बन कैनुला या फिर ओवम फॉर्सेप्स वी आर रिमूविंग आउट द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्टर्स। इनकम्प्लीट अबॉर्शन ये इसकी थर्ड स्टेज है, भाई यहाँ पे थ्रेटेंड हुआ, सर्विक्स क्लोज्ड है, सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है, इनएविटेबल में ब्लीडिंग हो रही है, सर्विक्स खुल गई और ये स्टार्ट हो गया। इनकम्प्लीट में ब्लीडिंग खूब सारी हो रही है, ये बस निकलने ही वाला है लेकिन निकला पूरा नहीं है, एंड सम प्रोडक्ट्स हैव बीन एक्सपेल्ड आउट बट सम प्रोडक्ट्स आर स्टिल इनसाइड। यहाँ पे भी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकती है और इसका ट्रीटमेंट इनएविटेबल की तरह किया जाता है, या तो आप मेडिसिन दे दीजिए जिससे कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, इसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। यूजुअली हम मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन में नहीं यूज करते हैं, वी यूजुअली टेक आउट दीज प्रोडक्ट्स ईदर बाय कार्बन कैनुला और बाय ओवम फॉर्सेप्स। सो फाइनली इनकम्प्लीट हो गया, सो प्रोसेस ऑफ एक्सपल्जन इज कंप्लीटेड। अब इसमें क्या होगा, साइज ऑफ यूट्रस डिक्रीज हो जाएगा, सर्विक्स क्योंकि उसने प्रोडक्ट्स निकाल दिए हैं तो सर्विक्स विल क्लोज और ब्लीडिंग और पेन भी कम हो जाएगा। और अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ये यूट्रस है, ये इसका एंडोमेट्रियम है, एंड यू सी इट इज कंटेनिंग नथिंग एंड एब्सोल्युटली नथिंग, दिस इज एंडोमेट्रियल कैनाल, इट इज एम्प्टी, यानी कि प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज बीन कंप्लीटेड और इसमें सब चीजें बाहर आ गई। इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, फिर रिएश्योर कर दीजिए कि अबॉर्शन हो चुका है, फॉलो अप करते रहिए एंड आस्क हर to come under your guidance for periconceptional counseling and before she conceives next time. So ये एक फोटोग्राफ है, इसमें you can see an expelled fetus, हाथ पैर सब बने हुए हैं और ये भी एक spontaneous abortion था, patient came with this clinical picture. अब let us revise कि क्या क्या होगा, right? ये थ्रेटेंड अबॉर्शन है जिसमें प्रेगनेंसी अभी भी अंदर है, हॉस क्लोज्ड है मगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। ये इनएविटेबल अबॉर्शन है जिसमें प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन हैज स्टार्टेड एंड इट इज बियॉन्ड द स्टेज ऑफ सैल्वेजेबिलिटी क्योंकि सर्विक्स भी खुल चुकी है और ये बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये इसका थर्ड स्टेज है जहाँ पे खूब सारी ब्लीडिंग हो गई है, प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्टर्स बाहर आ गए बट थोड़ा बहुत अंदर रह गया। दिस स्टेज इज नोन एज इनकम्प्लीट अबॉर्शन। और ये मिस्ड अबॉर्शन है, मिस्ड अबॉर्शन में क्या है, देखो एमेनोरिया है सिर्फ,
ना कोई पेन हो रहा है इसको कि एक्सपेल करे, ना कोई ब्लीडिंग हो रही है कि पेशेंट आपके पास आए, फीटस बना, कुछ ऐसा हुआ कि उसको फीटस इन यूट्रो डिमाइस हो गया, इन यूट्रो कुछ प्रॉब्लम हो गई, कार्डियक एक्टिविटी खत्म हो गई एंड इट इज स्टिल इनसाइड। इसमें क्या होता है, जो प्रेगनेंसी के साइंस होते हैं जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, ब्रेस्ट चेंजेस, ये सब रिग्रेस करने लगते हैं एंड पेशेंट आपके पास आएगी इसलिए कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, पहले तो नोजिया हो रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी, अब ऐसा कुछ नहीं। सो इन दैट केस इफ यू डू अल्ट्रासाउंड यू विल गेट अ डायग्नोसिस ऑफ मिस्ड अबॉर्शन। फिर मिस्ड अबॉर्शन में ब्लीडिंग हो भी सकती है, कभी कभार ब्लैकिश डिस्चार्ज होता है, pain is usually absent, and as I said, brownish discharge can be present. Regression of signs of pregnancy is there. और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसमें आपको या तो मेडिकल मैनेजमेंट देना होगा ताकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, या फिर सर्विक्स को डायलेट करके तब प्रोडक्ट्स निकालेंगे। सी, इन दिस कंडीशन इनएविटेबल और इनकम्प्लीट सर्विक्स वाज ऑलरेडी ओपन, तो इसमें आपको डायलेट करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट डू इवैक्यूएशन। इसमें सर्विक्स क्लोज्ड है, इसमें इसलिए इसमें आपको डायलिटेशन और इवैक्यूएशन करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर इन दिस रिगार्ड। सो ट्रीटमेंट मिस्ड अबॉर्शन का क्या होता है, some may expel spontaneously, others may need medical or surgical aid. So in any case of abortion, ये भी एक क्वेश्चन आता है स्पेशली फाइनल ईयर में, कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर। सो क्या क्या कंपोनेंट है, पहला है काउंसलिंग एंड ऑब्टेनिंग वॉलंटरी इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये अगर पेशेंट आपके पास ये वी विल डिस्कस दिस लेटर, आई विल इंक्लूड दिस CAC। सो वी वर टॉकिंग ऑफ टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने बताया सक्शन करके इवैक्यूएशन, यहाँ पे डायलिटेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। दूसरा प्रोसेस है डायलिटेशन और इवैक्यूएशन। सो नाउ अभी तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि हम सक्शन और इवैक्यूएशन कौन से दो टाइप ऑफ अबॉर्शन में करेंगे, और डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन कौन से एक टाइप ऑफ अबॉर्शन में करेंगे। सो यू आर वेरी करेक्ट, सक्शन एंड इवैक्यूएशन हम करेंगे इनकम्प्लीट और इनएविटेबल में, क्योंकि वहां पे सर्विक्स डायलेटेड है, आपको सिर्फ सक्शन करना है, और मिस्ड अबॉर्शन में डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। सक्शन क्यूरेटाज हम नहीं करते एक्सेप्ट इन मोलर प्रेगनेंसी, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है। और हम कभी भी डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज यानी कि DNC नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा मिसनोमर है। बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि DNC कर दो इसको अबॉर्शन हो गया। सो DNC इज अ गायनेकोलॉजिकल प्रोसेस, नॉट एन ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसेस। तो अगर अबॉर्शन का पेशेंट है या तो हम उसका सक्शन करेंगे या हम डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करेंगे। अगर हम डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज करें इसका मतलब हम कोई गायनेकोलॉजिकल प्रोसेस कर रहे हैं। सो अभी हम उस नीलू पेशेंट की कहानी पे वापस आ जाते हैं। मदर इन लॉ को जब डॉक्टर ने बताया कि भाई ये तो इनकम्प्लीट टाइप का अबॉर्शन है, आप इसको हेसन अप करा लीजिए, मदर इन लॉ को मजा नहीं आया, शी वांटेड अनदर ऑप्शन। अनदर ऑप्शन के लिए वो गई दूसरी डॉक्टर के पास, उनका जो फैमिली डॉक्टर था। फैमिली डॉक्टर ने सबसे पहले क्या किया, क्लिनिकल फीचर्स तो देखी ही, उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड भी कराया, क्योंकि अभी तक आपने अगर देखा होगा तो इस पर्टिकुलर पेशेंट का हमने अभी तक अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। और अल्ट्रासाउंड में राइट साइडेड ट्यूबल एक्टोपिक आई। ये क्या है, ये तो बड़ी शॉकिंग हो गया पूरी फैमिली के लिए। तो उन्होंने बताया डॉक्टर ने कि मैडम आपकी जो बहू है उसको ट्यूबल एक्टोपिक है। सो व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर लेक्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी and second complication of first trimester. So while this was A, and we have few more things to cover in abortion, like medical termination of pregnancy and its act, septic abortion, and I will continue the topic in next particular class. So till then, goodbye and keep your comments alive, keep posting your questions. कुछ भी लगे, कुछ भी पूछना है abortion से related, please ask.